Hello and welcome students. Today we are going to see our grammar part of lesson A Daughter's Love. A Daughter's Love lesson हम लोगों ने complete कर लिया है and today we are going to see the textbook grammar part of the same lesson. Read the sentences here. I am the happiest when I am able to serve you. I love you as I should. The verb am and love are in a simple present tense. Okay, the word I am is used for when you are talking in your present form, present tense, isn't it? Love is also a present form of the verb. The simple present tense tell us more about habit or a routine. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि हमारे हमेशा की रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कंटिन्यूसली वो काम करते हैं, तो हम लोग उस वर्ड का सिंपल टेंस फॉर्म यूज करते हैं. नाउ सी ऑन पेज नंबर 22. हियर इज सम एक्सप्लेनेशन. आई विल डू रीड फॉर यू. विथ ही, शी एंड इट मोस्ट वर्ब्स टेक्स ओनली एस फॉर्म द प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, लव्स, आई, you, we, they, he, she, it. When we are using with he, she, it, the word understand becomes s. Understands. He understands, she understands. And if we are using with I, you, we or they understand. Okay. They understand Tamil. She understands Tamil. Okay. When with he, she and it some verbs take es. जब हम लोग he, she और it के साथ में बात करते हैं तो verb es वाला फॉर्म लेता है. Like those ending with ch, sh, x, o और double s. इन वर्ड ये जब अगर एंडिंग में है तो हम लोग वहां पर es यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? es. Scratch, scratches. Smash, smashes. Mix, mixes. Pass, passes. Guess, guesses. For verb that end in y, we remove the y and what we use? ies. Okay. Carry, carries. Study, studies. If there is y and before y it is vowel. ओके, वॉवेल के साथ अगर y आ रहा है तो हमें सिर्फ s ऐड करना है. क्या ऐड करना है? s. अब यहाँ पर देखो एंजॉय है तो y के पहले क्या है? o. तो इसे हम लोग को जब प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग उसे सिर्फ s यूज करेंगे. ओके. जबकि अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और y है तो ies यूज होता है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ सी द फिल इन द ब्लैंक्स. वी विल सी ऑन पेज नंबर 22. Fill in the blanks with the verb in the simple present tense. Every day little Tara wake up early in the morning. यहाँ पर जो वर्ड दिया है इसका हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है. तो वेक्स अप नहीं बोलेंगे हम लोग, वेक अप बोलेंगे इसे. ओके. शी हरीज डाउनस्टेयर्स एंड इनटू द गार्डन. डू यू नो व्हाई शी गोज देयर एवरी मॉर्निंग. गो का प्रेजेंट टेंस हमें यूज करना है. गो का प्रेजेंट टेंस गोज. वेल, अ किटन कम्स. कम का प्रेजेंट टेंस कम्स. लव, लव्स. कैरी, कैरीज. गिव, गिव्स. स्लीप, स्लीप. गेट, गेट्स. ओके. एंड दिस यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक ऑल्सो. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीराइट दिस सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स. मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, उसे आपको सही करके लिखना है. तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि गलत क्या है, उसे आपने अंडरलाइन करना है. रीड द सेंटेंस नाउ. आई गोज टू स्कूल एवरी डे. गोज, गोज बोलने के हम लोग अगर हम लोग रोज जाते भी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? गो. यस. I go to school every day. The plane arrive at 9 a.m. Arrives आता है. ओके. तो हम लोग क्या यूज करेंगे उसको? arrives. She brush her teeth 3 times a day. She brushes her teeth
3 times a day. Imran never play football. Plays. Priya do her homework in the evening. Does. Priya does her homework every evening. In evening. The baby cry at night. Cry. No. Cry use नहीं होगा. क्या use होगा? Cries. ओके तो y हटाकर हमें IES यूज करेंगे हम लोग. No one like Rahul. He push everyone while getting into the bus. He pushes. He pushes. क्या आएगा इसका प्रेजेंट टेंस? Pushes. She study at night. She studies at night. मतलब जो हम लोग हमेशा करते हैं तो हम लोग उसको प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का. तो क्या होता है प्रेजेंट फॉर्म? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ. Okay students, now the next exercise is very simple, that is about proper noun, common noun and collective noun. All of you know that what is proper noun? Yes, proper noun क्या होता है? A proper noun is a particular name of a person, place, animal or thing. Common noun is the any name which is used for the things and the animals, and collective noun is a group of the person, people, animals. The word is being used here is called collective nouns. First sentence we are going to see. Remember, all the sentences do not have all the 3 types of noun. Now here the table is been given: proper noun, common noun and collective noun. First of all we will read the sentence and then we will see that in this sentence which are the nouns are there. कौन से प्रॉपर नाउन है, कौन से कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है. लेकिन उन्होंने कहा है कि एक सेंटेंस में सारे तीनों होने ही चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है. डू नॉट डिस्टर्ब द हीव ऑफ बीन्स. ओके, आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस व्हाट वी हैव सीन? हीव ऑफ बीन्स. दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. तो आपको फोर्थ सेंटेंस जो कलेक्टिव नाउन में आएगा तो उसे हीव ऑफ बीन्स. हीव मतलब क्या? ग्रुप ऑफ बीन्स. My sister is a doctor. Okay, मेरी बहन डॉक्टर है. Both sister and doctor are common noun or proper noun? Yes, they are common noun. A herd of elephants was going towards the lake. Okay, the herd of elephants is a collective noun because it is a group of elephants. है ना, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को हम लोग हर्ड बोलते हैं ना, तो ये यहाँ पर आएगा. और लेक इज द कॉमन नाउन. प्रिया बोरोड अ बुक फॉर मी. प्रिया इज द प्रॉपर नाउन एंड बुक इज द कॉमन नाउन. अ न्यू प्ले ओपन्स एट वराडा थिएटर ऑन फ्राइडे. अ न्यू प्ले. ओके, तो प्ले इज द कॉमन नाउन and Varda is the proper noun and Friday is also a proper noun. Theater is common noun. Sonam played the part of the rabbit in the play. So Sonam is the proper noun, rabbit common noun and also the play is the common noun. Okay students, तो इसी तरह आपको ये दोनों भी सेंटेंस आपको एज अ होमवर्क करना है. ओके, write here the common noun, proper noun and collective noun. Now see here on page number 24. The I want an answer now. अब यहाँ पर जो sentences दिए हैं वहाँ पर जो highlighted words है वो कौन से फॉर्म में है? नाउन फॉर्म में है या वर्ब फॉर्म में है, वो हमें देखना है. एक ही वर्ड है लेकिन जब उनकी जगह बदलती है, जब उनके फॉर्म बदलते हैं तो वो वर्ब फॉर्म में आ जाते हैं कोई नाउन फॉर्म का. जैसे कि आई वॉन्ट एन आंसर नाउ. हिज क्वेश्चन वॉज नेवर आंसर्ड. आंसर्ड मतलब दिस इज द एक्शन हियर. ओके, सो दिस इज द वर्ब फॉर्म. ईच विश विल बी फुलफिल्ड. शी विश्ड दैट हर चिल्ड्रन remain happy forever. In English, we have words that can be used as a noun or a verb. Now the words answer and wish can be used for a noun also and for a verb also. Noun के लिए और verb के लिए भी यूज होते हैं ये वाले words.
लेकिन सिर्फ इनका ईडी फॉर्म यहाँ पर हमने यूज किया तो वो वर्ब फॉर्म में हो गया है, क्योंकि सेंटेंस उस हिसाब से है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। राइट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द नाउन और द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। दिस न्यू कुक इज वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पर कुक किसको बोला गया है? जो खाना बनाता है ना, बावर्ची बोलते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर कुक क्या हो गया? नाउन है। ओके, आई कुक्ड इडलीज टुडे, मैंने आज इडलीज बनाई थी। तो बनाना मतलब क्या हो गया यहाँ पर? कुक करना मतलब क्या हो गया? यस, इट इज अ एक्शन, तो ये क्या हो गया? वर्ब। वुड यू लाइक टू गो फॉर स्विम, क्या आप स्विम करना चाहोगे? तो अब यहाँ पर स्विम क्या हो गया? नाउन है। शी स्विम्स इन द पूल एवरी मॉर्निंग, वो स्विम्स करती है, मतलब यहाँ पर एक्शन है, तो ये क्या हो गया? वर्ब फॉर्म है। What a strange smell, स्मेल, तो ये स्मेल क्या है? नाउन फॉर्म। एंड माई रूम स्मेल्स अ रोजेस, मतलब स्मेल आती है उससे, तो ये क्या हो गई? एक्शन है, तो ये वर्ब फॉर्म हो गया। द प्ले वॉज रिटन बाय द फेमस ऑथर, प्ले लिखा गया है, तो हम इसे नाउन बोलते हैं। लेट्स प्ले टिल इट इज टाइम फॉर द डिनर, सो इट इज अ वर्ब फॉर्म। सो इस तरह हमें ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको कि आपको नाउन और वर्ब फॉर्म में सेंटेंसेस बनाने हैं। यू कैन ट्राई इफ यू कैन। ओके, आप लोग इसको ट्राई करके देखना कि नाउन और वर्ब फॉर्म में आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको एड्रेस का। ओके, अब एड्रेस, ही एड्रेस्ड हिमसेल्फ, ही एड्रेस्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद के बारे में बताया। तो यहां पर क्या हो गया? ये एक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया? वर्ब। ओके, एंड आई नो हिज एड्रेस, आई नो हिज एड्रेस, मतलब मुझे उसका एड्रेस पता है, उसका वो कहाँ रहता है, वो एड्रेस मुझे पता है। तो यहां पर क्या हो गया? दिस इज द नाउन फॉर्म। ओके, सो इस तरह आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट दिस वर्ड। वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड, ओके सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मेक as many words you can find in your fatherhood। fatherhood ये वाला जो वर्ड है, इससे आप लोग बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं, स्मॉल वर्ड्स, जैसे कि फादर, ओके, फूड। इस तरह आप लोग अलग अलग बहुत सारे वर्ड्स इसके बना सकते हो, सिर्फ ये वाले वर्ड्स यूज करके, ये अल्फाबेट्स यूज करके आप अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं, स्मॉलर वर्ड्स। नाउ वी विल सी अबाउट नेक्स्ट। वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं? जब हम लोग कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस करते वक्त हम लोग उसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट रहता है या तो फिर 3 पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड करके उसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि टू बोलते वक्त ये कितना, एक ही बार हम लोग बोल रहे हैं, तो इसको 1 सिलेबल बोलते हैं। नंबर ऑफ टैप्स इज 1। फादर, तो ये 2 सिलेबल वाला है, मतलब 2 हिस्सों में बट रहा है। विजिटिंग, ये पूरा वर्ड एक ही है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं तो विजिटिंग बोलते हैं। विजिटिंग इज द 3 सिलेबल्स। रिमेम्बरिंग, तो ये कितने वर्ड्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं? 4 सिलेबल्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम लोग एक ही बार में बोलते हैं, तो ये 1 सिलेबल है। नाइट इज ऑल्सो 1 सिलेबल। रैकेट मीन्स रैकेट, तो दिस इज 2 सिलेबल। प्रैक्टिस सेइंग दिस वर्ड्स अलाउड with your partner or write how many syllables there are each word। अब आप इसको प्रोनाउंस कीजिए। पहले कैसे पढ़ोगे आप इसको? assembly, so there is 3 syllable, 1, 2 and 3। okay, canopy, okay, canopy, so there is 2 syllables।
Fragrant, 2 syllables. Category, 1, 2, 3, 4, 4 syllables. Umbrella, umbrella. So 3 syllables are there. Community, so there is also 3 syllables. Stifle is 2 syllables. Eligible, 1, 2, 3, 4, 4 syllables. Okay students, in this way you have to complete this exercise. Now on page number 26 you can see there is the punctuations. We have to do the punctuate the sentences, capitalize where it is necessary. Naveen wanted to visit his aunt in New York. Now here is the word Naveen, but it is starting with small alphabet. It is a proper noun, so it should be written in the, it is first letter also and it is proper noun also. The first letter should be capital. Here also the first letter should be capital. तो इधर आपको M कैपिटल करना है और यहाँ पर आपको अगर एक जैसी चीजें, एक ही कैटेगरी को बिलोंग करने वाली चीजें हो तो हम लोग उनको काय में डिवाइड करते हैं, यस, कॉमास डालकर हम लोग उनको डिवाइड करते हैं. जहां पर एंड होता है वहां पर कॉमा नहीं आता. आई कैपिटल होगा और ये आई वॉन्टेड टू स्पीक विथ मिस्टर दास, सेड द लिटिल बॉय टू प्रीत. अब ये कह रहा है तो हम इसे इन्वर्टेड कॉमा में बोल डालेंगे. क्या डालेंगे? इन्वर्टेड कॉमा. अब मिस्टर का एम भी आपको कैपिटल लिखना है और दास का डी भी आपको कैपिटल लिखना है क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर नाउन. And this is the first letter also and the pronoun also, so it should be capital letter. Do you want me to speak to your principal? Do. Okay, so D आपका कैपिटल होना चाहिए. Do you want me to speak, comma, to your principal about this? Question mark. Okay, क्या आप चाहते हो कि मैं उनसे बात करूं? तो ये आप पूछ रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा. वी, तो W आपको कैपिटल में लिखना है. मुंबई इज द प्रॉपर नेम, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, सो यू विल राइट द M in capital. Arabian, A is also capital. Understood student? So इस तरह आपको पंचुएशन मार्क्स यूज करके ये सेंटेंसेस लिखने हैं. I hope you all have understood. Okay students, bye.